branch. So today we have a yoga with Shri Mehul Yogi from the team of My Fitness Experts. Today we are going to do yoga flow with props like dupatta and belt, and additionally special yoga asanas for back pain and neck pain and knee pain. And tomorrow on the World International Yoga Day, we have a special yoga session with Satyajit Jhalaji from the team of My Experts, and the yoga session will be as per the common yoga protocol by the Ministry of Ayush. And after that, so tomorrow we have 7 to 8:15 session of live yoga session, and after that we have Sadhguru's Isha webinar on yoga for immunity and respiratory health. So Simha Kriya and Sashtang yogic practice will be taught to you on a pre-recorded video, but there will also be a live trainer from Isha. So Isha Foundation से एक live volunteer भी वहाँ होगा जो हमको कल train करेगा. So join us for an amazing yoga session tomorrow also 7 to 9 in the morning, and wishing you all a very happy International Yoga Day in advance. With this, we will start with our first session. I would request Jitu Bhai and his team to please come over. हरीश जी. Yes sir. हरीश Yes जी. sir. Hello. Yes sir. हरीश जी. हाँ सर बोलिए ना. Yes sir. सर एक कह रहे थे ना, कल का जो प्रोग्राम आपका है जरा हमको सर्कुलेट कर दीजिएगा. Yes, तो yes sir. कल इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा ब्रांच जुड़े आपसे. Absolutely sir. मैं आपको अभी WhatsApp करता हूँ, सर ग्रुप में भी डाल देता हूँ. We have just हाँ, sent it today morning. मैं अभी भेजता हूँ सर. हाँ हाँ, कल सर प्रयास है. Yes sir. Yes sir. Thank you so much sir. Thank you. Healthy morning, everyone. Yeah, healthy morning, everyone. Yes, as mentioned by Harish sir, today we are starting with special yoga session. It would be more based on the yoga flow with props workout. So we are the first time doing it with props. If you please keep dupatta or any belt with you, so that it becomes easy for everyone. We will explain you, we will guide you how to do it with props. So yes, yoga is not about what to do, but it is about how to do. So yes, we are focusing today on how to do. And yes, thereafter also we would be having a session in this session more focus on knee pain and back pain, because many of the patients, they would be having a knee issue, back pain issue. So how yoga asanas would help you to cure your back pain and knee pain. So from My Fitness Expert team, I would like to welcome Mr. Mehul Yogi ji. Good morning sir. मॉर्निंग. तो आज का सेशन में क्या खास रहने वाला है सर? आज का सेशन ऐसे स्पेशली हम जाएंगे कि एक योग का फ्लो रहे अच्छी तरीके से. उसमें आप शरीर को पहले गर्म करेंगे, सभी आसन को कंबाइन करेंगे, और जो हेल्प करेगा वो है दुपट्टा यानी बेल्ट. वो प्रॉपर आसन कर सके. अगर किसी का ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई किसी का हैमस्ट्रिंग जैसे प्रॉपर खुला नहीं है, तो उसको हम दुपट्टे के माध्यम से या बेल्ट के माध्यम से उस आसन को फाइनल पोजीशन में लाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे वो हेल्प भी हो और उनको ज्यादा तनाव भी ना रहे कि वो बहुत ज्यादा खींच के आसन भी ना करे, और इजी वे से धीरे धीरे वो अपनी फाइनल पोजीशन में आए, और जिससे वो बाकी सब ऑर्गन पे भी अच्छी तरीके से इफेक्ट करे. तो डीप मींस आपका कंप्लीट फ्लो कंप्लीट होगा. आप अभी कभी आधे रास्ते से छूट जाता है, यहाँ पे हम कंप्लीटनेस की ओर सपोर्ट मिलेगा. यस यस. आपको जो हाथ नहीं पहुंचता, तो जो हवा में रहती है हाथ, करेक्ट, तो उसको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बाकी सब जॉइंट्स खोल सकते हो. Excellent. So yes, we are celebrating Yoga Day for 2 days, today and tomorrow. So this would be our first session of International Yoga Day celebration. I hope you enjoy the session, sir. Please continue. Thank you. चलिए सभी लोग अपनी मैट्स पे बैठ जाइए. कमर गर्दन सीधी स्ट्रेट, आंखें बंद. गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए. डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. मस्तिष्क को पूर्ण रूप से तैयार करें योग अभ्यास के लिए.
और डीप इनहेल एंड एक्सेल। प्रेयर करेंगे। योगेन चित्त शपदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कमर गर्दन सीधी रखे स्ट्रेट 5 टाइम्स। डीप इनहेल एंड ओमकार करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। अगेन। Again. 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 Last time, deep inhale. रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करेंगे जोर से। गर्म करें थैली को पूर्ण रूप से। रखिए एंड रिलैक्स। ओके, योग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना दोनों पैर खोल दीजिए आगे सामने स्ट्रेट। पैर का पंजा आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। मैक्सिमम स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। देन पीछे स्ट्रेच। वापस आगे मैक्सिमम प्रेशर के साथ स्ट्रेच करे स्ट्रेच करे। स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट। देन अगेन पीछे खींचते जाइए उंगलियों को पूरा मैक्सिमम। अगेन फॉरवर्ड पूरा प्रेशर के साथ स्ट्रेच 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 कंप्लीटली। एंड अगेन पीछे। अगेन पूरा पैर आगे स्ट्रेच करिए पूरा स्ट्रेच 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 कंप्लीटली स्ट्रेच। देन पीछे। अगेन स्ट्रेच 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 कंप्लीटली स्ट्रेच। यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है आपके काफ मसल्स के लिए। जो महिलाएं कंटिन्यूसली किचन में खड़ी रहते हैं उनको वेरिकोस वेन्स की समस्या आ जाती है, जिनको पैर में स्वेलिंग रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो सुबह उठ के ये 10 से 15 बार कंटिन्यूसली आगे पीछे स्ट्रेच करिए। देन सर्कल लगाइए 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। पूरा राउंड लगाइए। 7 8 9 and 10. Then reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। दोनों पैर में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। दोनों पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, फिर बाहर, फिर अंदर प्रेशर दीजिए, फिर बाहर। सभी जॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे पैर के अंदर।
फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। चलिए कैट पोज आ जाइए, स्पाइन मूवमेंट, जितना डिस्टेंस आपका हाथों में है उतना ही डिस्टेंस पैरों में कर दीजिए, बैक रिलैक्स रखे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ अभ्यास करेंगे। इनहेल, हेड अप मैक्सिमम, आर्च बैक, स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए। देन एक्सहेल, नीचे देखो, पूरा पीठ ऊपर, स्टमक अंदर। अगेन इनहेल, हेड अप मैक्सिमम ऊपर, ओपन द चेस्ट, देन एक्सहेल डाउन, स्टमक अंदर मैक्सिमम। Again inhale up, head up, maximum stretch, stretch, stretch. Then exhale down, pull your stomach in maximum. Then inhale, release your stomach muscles, open your chest, head up properly. Then exhale again. Again inhale up. ये जो अभ्यास है ये बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं पूरे अभ्यास के दौरान हर एक आसन में कहाँ बैक में बेनिफिट होगा, नी में बेनिफिट होगा, कौन से मसल्स पे ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा, तो वो सब पूरे अभ्यास के दौरान हम करेंगे। तो फर्स्ट लेकर लास्ट तक पूरा अभ्यास ध्यान से करिएगा, क्योंकि बीच बीच में हर एक बेनिफिट बताता जाऊंगा तो कोई रह ना जाए उस बेनिफिट से, उसका ध्यान रखें। तो ये सबसे पहला है, आप स्पाइन को ऊपर और नीचे करेंगे। आप कंटिन्यूसली जो सिटिंग पोजीशन में बैठ के अभ्यास अपना वर्क करते हो तो उसमें आपकी स्पाइन फ्रीज हो जाती है, लोअर बैक। तो ये अभ्यास करने से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली आएगा और जो बैक की समस्या है वो बैक की समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। ओके, ये है बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको मार्जरी आसन बोलते हैं, कैट एंड कैमल पोज भी बोलते हैं। देन राइट लेग मैक्सिमम लिफ्ट अप, मैक्सिमम पीछे से स्ट्रेच करो, पॉइंटेड टो, स्ट्रेच एंड होल्ड 5 4 3 2 and 1. Then second leg, maximum straight and pointed toe, straight and hold, breathing normal 5 4 3 2 and 1. Come back. Second time again, right leg maximum stretch, then left हाथ ऊपर, spine straight, hold here, pull your stomach in 5 4 3 2 1. Come back. Then second leg, stretch maximum, right हाथ ऊपर, hold here 5 4 3 2 and 1. Come back. Right leg straight ऊपर, 10 times अप डाउन करेंगे, नी बेंड नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टो, देन 1 2 3 4 5, एल्बो बैंड नहीं करना है, उसका भी ध्यान रखेंगे। 6 7 8 9 and 10. Relax. Inhalation, exhalation. Then second leg, straight knee, pointed toe. Then start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Then come back to mountain. Knee up, heels down properly. Push a shoulder and heel stretch properly.
hold here, inhalation, exhalation, 5, 4, 3, 2, and 1. Walk back slowly, 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 and come back straight. सभी लोग अपने मैट्स पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ सिर के ऊपर। Inhale, heels up, maximum. Stretch, 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 stretch. Exhale down. Again, inhale, maximum stretch, 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 stretch. Exhale down. ये अभ्यास भी आपके स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी वर्टिब्रा को प्रॉपर्ली ओपन करता है, स्पाइन की स्टिफनेस को दूर करता है। Then exhale down. Again, inhale up, maximum stretch, 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 stretch. Exhale down. Inhale up and hold. 5, 4, 3, 2, and 1. Come back. दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस। सेम हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। एल्बो बैंड नहीं करना है, उसका ध्यान रखेंगे। देन एक्सेल, बैंड 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 करे पूरा शरीर। बैंड बैंड बैंड, देन कम बैक टू सेंटर। देन एक्सेल, सेकंड साइड डाउन। बैंड 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 बैंड, come back. Again, second side down, completely bend, bend, bend. Then come back. Exhale, second side down again. Bend, bend. Then come back. Again, second side down, pura niche, breathing normal and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to center. Then exhale again, second side down and hold, breathing normal. Open a chest. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to center. Then exhale, relax. Then twist your back, right side and left side. Gently. Completely twist your back, relax your back muscles, shoulder muscles. Maximum. पीछे, स्पाइन एकदम रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। आज जो भी हम अभ्यास करेंगे वो स्पाइन रिलेटेड ही होगा। तो ये जितने भी आसन आप देख रहे हो सभी आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देगा, मजबूताई देगा, जो आगे जाके कभी जर्क नहीं आएगा, बैक पेन नहीं आएगा। तो ये सब अभ्यास बहुत ही अच्छा है आपके स्पाइन के लिए। तो घुमाते रहिए पीछे, लोअर बॉडी हिलना नहीं चाहिए, लोअर बॉडी एकदम सीधा रहेगा। अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, रिलैक्स। चलिए मैट के पीछे खड़े हो जाइए। सामने नजर, then knee bend and Utkatasana up. Open a chest, arms up, hold here. 5, 4, 3, 2, and 1. Knee straight and full forward down. Completely full forward down. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Walk forward to plank. Then knee down, chest down, and chin down. Hip up. Then upper body upper. Slightly elbow bend. Open a chest. 5, 4, 3, 2, and 1. Then back to mountain again. Heel stretch properly. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Right leg maximum पीछे से ऊपर. Stretch, 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 stretch completely. 5, 4, 3, 2, 1. Then right leg forward. Left knee down. दोनों हाथ ऊपर. Open a chest. Push your hips down maximum. Then finally head up. Hold here. 5, 4, 3, 2,
and one. Come back to mountain. Heel stretch properly. Open a shoulder. And again, walk back slowly, 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 slowly. Pull forward down. Again, inhale Utkatasana up, knee bend. Open a chest. Inhalation, exhalation. Inhalation, exhalation. Then exhale again, full forward down. Go forward, go forward, go forward. Then again, walk forward to plank. Slowly. Then chest to ground, knee bend, chest down, chin down. Upper body upper. Open a shoulder. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Back to mountain. Heel stretch properly. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Left leg maximum stretch, 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 stretch. Then left leg forward. Right knee down. Hands up. Push your hips down. Finally, head up. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to mountain. Knee straight and back. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Then back to again. Walk. Slowly walk. 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 Knee straight. Pull forward down. Then knee bend and Utkatasana up. Open a chest. 5, 4, 3, 2, 1. Knee straight and full forward. Completely down. And again, walk forward, walk forward, walk forward, and straight knee. Chest to ground. Upper body upper. Open a chest. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Back to mountain. Heel stretch properly. Hold here. Again, right leg maximum पीछे से ऊपर. Stretch करे, completely stretch. 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 Then right knee bend and turn left side. Completely twist. 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 Then come back. Right leg forward. Turn left side. Bend your right knee. Open a chest. Right side नजर रखे पूरा. Breathing normal. 5, 4, 3, 2, 1. Left side bend. Reverse warrior. Right heart straight. Open a chest. 5, 4, 3, 2, 1. Come back again. 5, 4, 3, 2, and 1. Right leg back to plank. Elbow straight. Chest to ground. Open a chest up. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Back to mountain. Heel stretch properly. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Left leg maximum stretch, 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 stretch. Then knee bend. Turn right side. Completely down, 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 down. Come back. Left leg forward. Turn right side. दोनों हाथ एक shoulder level पे. Left knee bend. Hold here. Open a chest. 5, 4, 3,
2 1 reverse warrior, left हाथ ऊपर and slightly back to right side. 5 4 3 2 1 come back again. 5 4 3 2 and 1 left leg back to plank, slowly back, then chest to ground, inhale up, upper body upper, then exhale mountain, heel stretch properly, hold here. 5 4 3 2 1 walk back again, pull forward, then inhale Utkatasana, open your chest. 5 4 3 2 1 exhale down, pull forward down, and again walk forward slowly, 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 then chest to ground, inhale up, open your chest. 5 4 3 2 1 back to mountain, hold here. 5 4 3 2 1 right leg again maximum upper, stretch 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 stretch, then right leg forward, then left leg forward, pull forward down, pull forward down, then धीरे धीरे लेफ्ट लेग मैक्सिमम पीछे से ऊपर, पॉइंटेड टो, होल्ड हियर. 5 4 3 2 1 अपर बॉडी धीरे धीरे, slowly slowly, hold here with balance, pointed toe. 5 4 3 2 and 1 come back, left leg down, pull forward down, then right leg back, then left leg back to plank, chest to ground, inhalation, upper body upper, open your chest, then exhale down. Very good. Hold here, hold here, hold here. Then left leg forward, then right leg forward, pull forward down, then right leg धीरे धीरे straight करते जाइए, straight straight, pointed leg, hold here. 5 4 3 2 1 upper body upper, slowly with balance, hold here. 5 4 3 2 and 1 come back, right leg down, exhale completely, then left leg back, then right leg back, chest to ground, exhale, inhale, come back up, exhale mountain, then walk back finally, slowly 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 slowly, inhale Utkatasana, exhale समस्थिति, रिलैक्स. चलिए सभी लोग अपने बेल्ट ले लीजिए, दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लीजिए, हम उसके साथ अभ्यास करेंगे. ओके चलिए.
आ जाइए पोजीशन में, जिसके पास बेल्ट हो, दुपट्टा हो, वो सब ले लीजिए और बैठ जाइए। अभी हम करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच प्रॉपरली, बैक स्ट्रेट रखेंगे और कैसे आप अपनी लेग मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो, उसके लिए अभ्यास है। ओके, तो सबसे पहले नी बेंड करो, राइट नी, दुपट्टा ले लीजिए, बेल्ट ले लीजिए, उसको आगे से पकड़िए और अपने राइट फीट पे फंसा दीजिए पूरा, बैक स्ट्रेट रखेंगे। ओके, देन फर्स्ट राइट लेग अप, देन स्ट्रेच कंप्लीटली, बेल्ट हो, दुपट्टा हो, उसके सहारे आप अपने पैर को अपनी बॉडी के करीब ले जाने का प्रयत्न करो, बॉडी को नीचे मत झुकाओ। ओके, बॉडी स्ट्रेट रखो, देन लेग मसल स्ट्रेच, बैक स्ट्रेट, होल्ड हियर, ब्रीदिंग नॉर्मल, full stomach in, fingers open, hold, 5, 4, 3, 2 and 1। देन अपने राइट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़ लीजिए, दुपट्टे को पूरा प्रॉपरली, देन राइट हाथ टर्न टू राइट साइड, ओपन अ चेस्ट, लिफ्ट करो पूरा पैर को। अगर आप पैर को पकड़ सकते हो तो पैर को पकड़ के एल्बो स्ट्रेट रखिए एंड ट्विस्ट योर स्पाइन। 5, 4, 3, 2 and 1। कम बैक टू सेंटर अगेन। अभी दुपट्टे को ही पकड़ के रखो, मैक्सिमम अपर बॉडी ऊपर एंड फोरहेड डाउन, होल्ड हियर। 5, 4, 3, 2 and come back, relax, inhalation exhalation। ये दुपट्टे के माध्यम से आप बहुत सारे आसन है वो इजी तरीके से कर सकते हो। जो लोग को टो टच करने में दिक्कत आ रही है, फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत आ रही है, वो सभी लोग दुपट्टा या बेल्ट के माध्यम से अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेग मसल स्ट्रेच कर सकते हो, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो। ओके, देन सेकंड लेग, नी बेंड, ओपन अ चेस्ट, लिफ्ट अप एंड स्ट्रेट करे लेग को मैक्सिमम स्ट्रेट, बेंड योर एल्बो, ओपन अ चेस्ट, फिंगर्स ओपन, पुल स्टमक इन, होल्ड हियर। 5, 4, फील करो स्ट्रेच को, प्रॉपरली फील करिए। 3, 2 and 1। देन अभी लेफ्ट पैर को राइट हाथ से पकड़िए। ओके, दुपट्टे को भी पकड़ सकते हो और अपने डायरेक्ट जो पैर पकड़ सकता है, नी स्ट्रेट रख सकता है, वो वैसे करे और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करे लेफ्ट साइड, ओपन अ चेस्ट, ट्विस्ट योर स्पाइन। इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी स्पाइन में कोई अकड़न है वो भी दूर हो जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक अगेन, वापस बेल्ट से पकड़िए पैर को, ओपन अ चेस्ट and bend knee and maximum pull forward, pull it down। 5, 4, 3, 2 and 1। come back, inhalation exhalation और inhalation exhalation। देन अभी दोनों पैर से साथ में अभ्यास करेंगे, थोड़ा बैलेंसिंग है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है। तो सबसे पहले दोनों नी को बेंड कर दीजिए और बेल्ट को पकड़ लीजिए और दोनों पैर पे फंसा दीजिए, स्पाइन ओपन करें, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों नी साथ में। देन स्लाइटली पैर को लिफ्ट करो, फर्स्ट लिफ्ट करो और कंसंट्रेट करो अपने दोनों टो के ऊपर, नजर दोनों टो के ऊपर रखो। फर्स्ट है बैलेंस बनाना हिप्स के ऊपर। अब आप जितना आप बेल्ट को करीब से पकड़ोगे उतना बेटर बैलेंस बना पाओगे। लिफ्ट किया, नजर टो के ऊपर, धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते जाइए अपनी क्षमता अनुसार और पूरा टाइट रखे, स्टमक को अंदर करे, ओपन योर चेस्ट, देन होल्ड हियर।
वेरी नाइस, होल्ड हियर, होल्ड हियर, 5 4 3 2 1, स्लोली बैंड योर नी। अभी दुपट्टे के माध्यम से कर रहे हैं, अगर जो दुपट्टे के माध्यम से नहीं करना चाहता, जिसका पैर टच हो रहा है, वो सीधा सीधा पैर को पकड़ सकते हैं बाहर से और हिप से बैलेंस बना सकते हैं, और नी धीरे 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 सीधा कर दीजिए, देन बैक स्ट्रेट। पर नी स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, बैक को सीधे रखो, नजर सामने, ब्रीदिंग नॉर्मल, 5 4 3 2 1। अभी दुपट्टा भी नीचे रख दो, हाथ को भी नीचे रख दो, एंड बैलेंस, नौकासन, 5 4 3 2 1, देन बेंड योर नी, रिलैक्स। इससे बैक में थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है, तो वापस हम बैक को रिलैक्सेशन करेंगे, माजरी आसन में आ जाइए, और इनहेलेशन, लोअर बैक डाउन, एक्सहेलेशन, पुल स्टमक इन, बैक ऊपर, अगेन इनहेलेशन, लोअर बैक डाउन, एक्सहेलेशन, बैक ऊपर, inhalation, head up completely, then exhalation, pull your stomach in, again inhalation, open your chest, head up properly, then exhalation। इससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपकी नेक में कोई समस्या है, अगर आप कंटिन्यूसली लैपटॉप और कंप्यूटर में बैठते हो तो शोल्डर नीचे ड्रॉप रहते हैं, नेक नीचे की तरफ रहती है, तो उसके बहुत स्टिफ हो जाती है नेक, और नेक की स्टिफनेस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम भी आती है। तो ये अभ्यास बहुत अच्छा है, ये करते रहिए अभ्यास, सुबह उठ के स्पाइन को स्वस्थ रखे, क्योंकि आपका सहारा स्पाइन है, पूरी शरीर का वजन स्पाइन उठाती है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथ देना बहुत आवश्यक है। तो ये अभ्यास बहुत ही अद्भुत है, इसको अभ्यास करें। ओके, ये फर्स्ट था। देन हम बेल्ट से ही अभ्यास करेंगे, लेट जाएंगे, लेट जाइए अपनी मैट्स के ऊपर। ओके, देन राइट नी बेंड करें और राइट नी पे बेल्ट को फंसा दीजिए वापस, या दुपट्टे को फंसा दीजिए। बैक जमीन पे रहेगी, बैक उठानी नहीं है, उसका ध्यान रखेंगे। ओके, और धीरे धीरे अपने नी को सीधा करने का प्रयत्न करें। फर्स्ट जितना हो उतना, पहले 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री उठाओ, इतना हो तो इतना उठाओ, पर नी को सीधा रखो, बेंड करना नहीं है थोड़ा सा भी, एकदम सीधा रखो, अंगुलियों को अपनी तरफ खींचो। अब जितनी आपकी क्षमता है उतना धीरे धीरे बेल्ट के सहारे अपने पैर को अपनी तरफ खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। देन होल्ड करें, नजर ऊपर की तरफ, स्टमक अंदर करो, श्वसन एकदम सामान्य, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें प्रॉपरली, पैर को मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट करें। कंटिन्यूसली जब आपका पैर चेयर में बैठते हो तो नीचे की तरफ रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉपरली होता नहीं है, वो हार्ट की तरफ इजीली जाता नहीं है। तो हम ये अभ्यास के माध्यम से अपने पैर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, वहां का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ बैक भी ट्विस्ट होती है, वो भी हम देख लेंगे, बैक को कैसे मजबूती दे, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाए। तो इसी पैर को ऑपोजिट हाथ से पकड़ देना है। राइट पैर को मैंने लेफ्ट हाथ से पकड़ लिया है, राइट हाथ जमीन पे रख दिया है, हथेली जमीन की तरफ, ऊपर नहीं, ऐसे पूरा टाइट पकड़ना। अभी मेरे लेफ्ट पैर को, राइट पैर को ले जाऊंगा लेफ्ट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, धीरे धीरे, और जमीन पे रखना है, पूरा नजर रहेगी राइट साइड, बोथ नी स्ट्रेट, ओपन योर चेस्ट, दोनों शोल्डर जमीन पे रहे, उसका ध्यान रखो, और फील करो स्ट्रेच हिप मसल्स पे, हिप जॉइंट पे, बैक मसल्स, शोल्डर्स, सभी जगह पे ये स्ट्रेच फील करता है। होल्ड करें, 5 4 3 2 1, कम बैक टू सेंटर, धीरे धीरे पकड़ के ही लाना है बेल्ट को, नी स्ट्रेट रखना है। ओके, देन अभी सेम हाथ से सेम लेग को पकड़ेंगे, राइट हाथ से राइट बेल्ट को हमने पकड़ा है, लेफ्ट हाथ वापस जमीन पे रहेगा। देन लेफ्ट साइड स्लो, राइट साइड स्लोली स्लोली ले जाओ, ले जाओ,
पूरा जमीन पे रखने का प्रयत्न करो, एकदम सीधा करो ऊपर की तरफ, देन होल्ड, both knee tight, hold here, 5 4 3 2 and 1, come back to center again। जितनी क्षमता हो अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना है। ओके, फिर अभी बेल्ट को पकड़ लीजिए और अपने करीब लेके आइए। बेल्ट को पकड़ना नहीं है तो एंकल को पकड़ लो, बेल्ट को वहीं पे रखो या तो नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए। एंकल को पकड़ के अपनी बैंड योर एल्बो, एल्बो बैंड करो और पैर को करीब लाओ, धीरे धीरे फेस ओपन करो एंड फोरहेड टच कराओ। होल्ड हियर, स्टमक अंदर, होल्ड हियर, 5 4 3, स्ट्रेच करो प्रॉपर्ली, 2 एंड 1, कम बैक। पैर को धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए। पूरा एक्टिव हो गया आपका पैर, हैमस्ट्रिंग पूरा प्रॉपर्ली स्ट्रेच हुआ है, लोअर बैक पूरा स्ट्रेच हुआ है। फील करो स्ट्रेच को प्रॉपर्ली। 10 सेकेंड लेग। ओके, लेफ्ट लेग से अभ्यास करेंगे और पूरा मानसिक, पूरा आपका माइंड है वो पूरा इस जहां पे स्ट्रेच हो रहा है मसल उस पे लगाना है, जिससे आपका माइंड भी साथ दे आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। ध्यान पूरा मसल्स पे, जहां पे खिंचाव तनाव हो रहा है, दर्द हो रहा है थोड़ा सा, वो पेन को सहन करे, धीरे धीरे वो पेन दूर हो जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रेच होगा बॉडी। वापस से एक्सेलेशन करो, धीरे धीरे बॉडी खुलता जाएगा। तो जितनी क्षमता है उतना रुकिए, सांस पे ध्यान लगाइए, मसल्स को महसूस करे, फिंगर्स ओपन करे, धीरे धीरे स्ट्रेच करे, देन होल्ड करे थोड़ी देर। 5 4 3 2 1। देन राइट हाथ से पकड़ेंगे बेल्ट को। अगर जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो पहले से पैर को पकड़ सकता है, वो पूरा पैर को पकड़ ले बाहर से। ओके, देन ट्विस्ट करना है। अगर बेल्ट को पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, हाथ पैर को पकड़ सकते हो तो भी बहुत अच्छा है। देन ट्विस्ट योर स्पाइन टू राइट साइड, फेस रहेगा लेफ्ट साइड, ओपन योर चेस्ट, नजर रहेगी लेफ्ट साइड, पैर रहेगा राइट साइड, लेफ्ट शोल्डर जमीन से उठना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखो। बोथ नी टाइट, 5 4 3 2 and 1, come back to center, straight, spine again straight, knee straight। then लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ले जाओ, सेम साइड, बेल्ट को पकड़ो लेफ्ट हाथ से, राइट हाथ जमीन पे शोल्डर लेवल पे, और धीरे 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 ले जाइए सेम साइड, पूरा नी अपने शोल्डर लेवल तक, पैर के पंजे को शोल्डर लेवल तक ऊपर लाने का प्रयत्न करें। बोथ नी टाइट, स्ट्रेच फील करो मैक्सिमम, पुल स्टमक इन, 5 4 3 2 and 1, come back, come back, come back, come back। then finally जब इतना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया है तो फोरहेड टच कराएंगे अपने नीज के ऊपर, धीरे धीरे अपने पैर को अपने फेस के करीब लेके जाइए। सेकंड है, आप अपने एंकल को पकड़ लीजिए, बेल्ट को रख दीजिए नीचे। ओके, देन बेंड योर एल्बो, शरीर को अपने करीब लेके जाइए, एक्सेल करो, एक्सेल एक्सेल, फोरहेड टच प्रॉपर्ली, होल्ड हियर, 5 4 3 2 and 1, come back। पैर को धीरे धीरे रिलैक्स करें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, प्रॉपर्ली इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अभी एक अद्भुत अभ्यास है जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके लेग मसल्स को प्रॉपर्ली फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और जो महिलाओं को या जो कंटिन्यूली खड़े रहते हैं उनको पैर में स्वेलिंग जैसी समस्या रहती है, लेग मसल्स में स्वेलिंग रहती है, नी में स्वेलिंग रहती है, वो सभी लोग ये अभ्यास को करें, अपने लोअर बैक को जमीन पे टच करके रखे और प्रॉपर्ली पैर को 90 डिग्री ऊपर रखना है और नी को स्ट्रेट रखना है। ये बेल्ट के माध्यम से आप अपने पैर को पकड़ के रखो और ऐसे आप 5 मिनट तक रुक सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर्ली पैर से नीचे की तरफ गति करेगा और अपने जो पैर में जो कोई भी मसल्स है वो रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली स्टिफ हो रहा है,
ब्लड प्रॉपरली वहां पे नहीं जा रहा है, जिसके कारण वहां पे स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये अभ्यास करने से क्या होगा, आपके पैर एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, स्टमक अंदर रहेगा और लोअर बैक पूरी नीचे दबती है। तो क्या है, लोअर बैक में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको पुल हो गया है मसल्स, कोई भी ऐसी समस्या है, स्टिफ लग रही लोअर बैक, तो पूरा आपका लोअर बैक ग्राउंड पे टच होता है, तो एडजस्टमेंट कर लेता है अपने हिसाब से ही। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसको आप रोक के रख सकते हो ऐसे थोड़ी देर के लिए। रुकेंगे, 5 4 3 2 1। अब इसी के साथ आपके स्टमक को भी हमें स्ट्रांग बनाना है, तो हम पैर दुपट्टे को हटा देंगे, नीचे रख देंगे और पैर वहीं पे रखेंगे और सीधा वजन अभी स्टमक पे आ जाएगा। तो कोर मसल्स एकदम स्ट्रांग बनेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली बनेगा। तो वापस से नी टाइट रखो, इधर पूरा होल्ड करके रखो, लोअर बैक जमीन पे रखो, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड स्लोली स्लोली नी बैंड करेंगे एंड रिलैक्स। अभी जिसको बैक पेन हो जाता है इंस्टेंट, कभी हो जाता है, कभी कभी उठने के कारण हो जाए, कहीं पे खड्डे में पैर आ जाए उसके कारण भी हो जाए, तो इसके लिए एक रामबाण इलाज है। तो हम सबके पास ये चीज होती है, तो आप चेयर ले लीजिए, चेयर प्लास्टिक की स्टूल होती है वो ले लेना है। जब भी बैक एक हो इंस्टेंट, तो चेयर ले लिया हमने, जल्दी जल्दी चेयर ले लीजिए, प्लास्टिक की चेयर इनफ है, सीधी। ओके, लेट जाना है धीरे धीरे। बैक हो, जब भी बैक पेन हो तो झटके से लेटना नहीं है, धीरे धीरे जिस साइड पेन है उस साइड वजन ना आके अब एक साइड करवट लेके लेट जाओ और अपने स्पाइन को नीचे रख दो। धीरे धीरे दोनों पैर को उठा के चेयर के ऊपर रख दो। याद रहे कि आपका नी और हिप एकदम सीधा रहे, आगे पीछे ना रहे, पैर एकदम साथ में। ओके, और ये जब अभ्यास करोगे, और वो जमीन पे करना है, बेड पे करना नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नीचे हार्ड सरफेस होना चाहिए, जिससे आपकी लोअर बैक पूरी तरीके से नीचे दबती रहे, नीचे खड्डा ना गिरे उसका ध्यान रखना। ये पूरा पूरा फ्लैट होना चाहिए, जमीन से चिपका हुआ। और इसी स्थिति को आपको 10 मिनट तक मेंटेन करना है। आप इसमें रिलैक्सेशन कर सकते हो, इसी में ही आप ध्यान अभ्यास भी कर सकते हो, शवासन का अभ्यास भी कर सकते हो, ओमकार भी कर सकते हो, जो आपको ध्यान अपने शरीर के अंदर रखे वैसे कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप चेयर के माध्यम से बैक को रिलैक्सेशन दे सकते हो। यह पोज में आपकी बैक एकदम रिलैक्सेशन रहती है, रिलैक्स पोज में रहती है, बैक उठी हुई रहती नहीं है। तो जब भी बैक पेन हो ये अभ्यास करो और धीरे धीरे आप फील करोगे कि बैक पेन दूर होता जा रहा है, स्टिफनेस भी दूर होती जा रही है और बहुत ही आनंद मिलता है बैक को। जैसे वो पूरी कंटिन्यूसली आप चेयर पे बैठे रहते हो और कंटिन्यूसली आप स्पाइन को वर्क करते रहते हो पर उसको रिलैक्सेशन देते नहीं हो, तो ये अभ्यास से स्पाइन पूरी नीचे दबती है, लोअर बैक का हिस्सा होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अपर बैक को सपोर्ट मिल जाता है पर लोअर बैक को कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा दर्द हमें लोअर बैक में ही होता है। तो ये अभ्यास आपको लोअर बैक को सपोर्ट देगा। उसको तो आप बैक को इस तरीके से रखेंगे। आवाज क्लियर आ रही? तो ये अभ्यास आपको करना है। अभी चेयर को हटा देंगे, अभी वापस से हम बैक के ऊपर आते हैं। पहले बैक समस्या जिसको भी है, हम फर्स्ट से बता देता हूं कि क्या करना है। फर्स्ट, जब भी बैक हो, आपको बैक पेन हो, फर्स्ट ये अभ्यास करना है, मार्जरी आसन। इनहेलेशन अप एंड एक्सहेलेशन डाउन 10 से 15 बार यह अभ्यास करिए। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है ये। एल्बो को बैंड नहीं करना है, याद रखिए। चेस्ट ओपन करनी है, स्टमक अंदर करना है। इसमें बहुत सारा एक ही अभ्यास में बहुत आप बेनिफिट ले सकते हो। जब हेड अप करते हो तो इनहेलेशन करते हो तो लंग्स पूरा एक्सपांड होता है, चेस्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता है। नीचे देखते हो तो स्टमक अंदर होता है, जिसका स्टमक ब्लोटिंग की समस्या है वो भी दूर होती है। और स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होती ही है, स्पाइन, हिप मसल्स, लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर्स, नेक, पूरी स्पाइन को ये कवर करता है ये अभ्यास। ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। देन सेकंड है, आप
इसी पोजीशन में रह के एक हाथ को ऊपर करोगे तो ट्विस्ट होती है आपकी स्पाइन। इसी पोजीशन में आपको स्पाइन को ट्विस्ट करना है, एक हाथ ऊपर करना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखे, होल्ड करे प्रॉपरली, देन कम बैक, देन सेकेंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1, कम बैक, अगेन ट्विस्ट। याद रखे आपका हिप का कोई मूवमेंट ना हो, सिर्फ अपर बॉडी का मूवमेंट हो, उसका ध्यान रखना है, ऊपर नजर रखनी प्रॉपरली, देन कम बैक, अगेन ट्विस्ट, twist your spine, twist your spine, twist your spine, then come back, again twist, second side, 5 4 3 2 1, come back again, then second side twist maximum, 5 4 3 2 and 1। ओके, ये अभ्यास है। अभी हम दूसरा अभ्यास करेंगे, लेट के अभ्यास करना है। लेट के कैसे करेंगे? दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है, दोनों नीज के बीच में डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहेंगे। दोनों पैरों को हम जाएंगे राइट साइड लेके जाएंगे, तो राइट साइड जब भी लाएंगे तो लेफ्ट नी को राइट पैर की हील्स पे टच कराना है। पैरों में इतना गैप रखोगे आपके राइट पैर के हील्स पे आपका लेफ्ट पैर का नी टच हो जाए, और नजर आपकी रहेगी ऑपोजिट साइड। फिर वैसा ही सिर्फ पैर को मूवमेंट देनी है, पैर को सिर्फ अपने लेफ्ट साइड ले जाना है, हिलाना नहीं है, सिर्फ नी को ले जाइए लेफ्ट साइड और फेस रहेगा राइट साइड। वापस सेकेंड साइड, धीरे धीरे ट्विस्ट योर बैक, लोअर बॉडी ट्विस्ट करो, नजर रहेगी ऑपोजिट साइड, स्टमक अंदर, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। देन अगेन सेकेंड साइड, ट्विस्ट योर बैक, ट्विस्ट योर बैक, ट्विस्ट योर बैक, देन अगेन सेकेंड साइड, पूरा ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। ये अभ्यास है जिसको बैक पेन की समस्या अभी भी है तो ये अभ्यास तुरंत करे, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, बैक पेन को दूर करेगा, शोल्डर पेन को दूर करेगा। जहां पे पैर जाएगा उस दिशा में आपको फेस नहीं रखना है, ऑपोजिट दिशा में फेस रखना है। पैर राइट साइड जा रहा है तो नजर आपकी लेफ्ट साइड रहेगी, देन कम बैक। ये अभ्यास हो जाने के बाद आप दोनों पैर को और करीब लेके जाएंगे अपने, और हाथ से एंकल को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। अगर पकड़ में नहीं आता है तो आप जमीन पे भी रख सकते हो, अगर एंकल पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए, और अपने कमर को मैक्सिमम लिफ्ट करो। इनहेलेशन, लिफ्ट अप, ओपन योर चेस्ट, गर्दन जमीन पे रहेगी, और चीन और लॉक लगाइए, एक्सेल डाउन, वेरी गुड। अगेन इनहेल अप, मैक्सिमम लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, एक्सेल डाउन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको सेतुबंध आसन बोलते हैं, कंधरासन भी बोलते हैं। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, पेन को दूर करेगा। आपकी स्पाइन जो कंटिन्यूअसली नीचे झुकी हुई रहती है उसको सीधा करने में बहुत हेल्प करेगा। ये स्पाइन की एक प्रकार से मसाज होती है इससे। देन एक्सेल डाउन। इसको 10 से 15 बार अभ्यास करना है जब भी बैक पेन हो जाए तब। देन एक्सेल डाउन, फील करना है पूरा, और नजर आपकी एक जगह पे स्थिर रखो, या तो आंखें बंद रखो, पर अंदर से ध्यान आपकी स्पाइन के ऊपर होना चाहिए जहां पे स्ट्रेच हो रहा है। इसमें लेग मसल्स में भी स्ट्रेच होता है, थाइज में भी स्ट्रेच होता है, तो हैमस्ट्रिंग और आपकी थाई मसल्स है वो भी एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। देन फाइनली होल्ड करो, हाथ रखो कमर के नीचे और लिफ्ट करो स्पाइन अप मैक्सिमम, होल्ड हियर, ब्रीदिंग नॉर्मल। यह अभ्यास आपके हार्ट के लिए और लंग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। ये हार्ट को धीरे से थोड़ा देर के लिए रिलैक्सेशन फील कराता है। ये जैसे आप इनहेलेशन करते हो आपका स्टमक ऊपर उठता है, एक्सहेलेशन करते हो तो स्टमक नीचे जाता है। हार्ट का कार्य इजी कर देता है ये अभ्यास। तो थोड़ी देर के लिए जो कंटिन्यूसली 24 घंटे आपका हार्ट वर्क करता है तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलता है इस अभ्यास से। तो इससे होल्ड करो इस अभ्यास को, 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। पैर को सीधा कर दो, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से याद रखो बैक पेन के लिए ही है तो लेफ्ट नी को बेंड करो फास्ट,
दोनों हाथ से पूरा नी को प्रेशर दो और पूरा स्टमक को दबाओ, लोअर बैक को प्रेशर दीजिए पूरा, पैर स्ट्रेच करो, राइट नी स्ट्रेट, देन एक्सेल फेस ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल, देन फेस डाउन। अभी लेफ्ट नी को ले जाना है राइट साइड, लेफ्ट हाथ आपका जमीन पे रहेगा शोल्डर लेवल पे, लेफ्ट नी को राइट हाथ से पकड़िए और धीरे धीरे ट्विस्ट करो सेकेंड साइड, पूरा ट्विस्ट और जमीन की तरफ ले जाने का प्रयत्न करो, नजर रहेगी आपकी लेफ्ट साइड, दोनों शोल्डर को जमीन पे रखने का प्रयत्न करें। अगर उठ रहा है शोल्डर तो जहां तक आपका शोल्डर जमीन पे रहे वहीं पे रोकिए अपने शरीर को, श्वसन एकदम सामान्य रखे, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखो, जिससे और आपकी बैक ट्विस्ट होती जाए, उसको पूरी तरीके से रिलैक्सेशन फीलिंग करे, एकदम शांत रखे, श्वसन एकदम सामान्य रखो, तो धीरे धीरे वो अपने आप फ्लेक्सिबल बनता जाएगा, ट्विस्ट होता जाएगा। देन कम बैक, पैर को सीधा करें, अब दूसरा पैर, राइट नी बेंड, मैक्सिमम पकड़िए पूरा राइट नी को, देन एक्सेल, पूरा स्टमक को दबाइए, पूरा एक्सेल स्टमक होल्ड करें इधर थोड़ी देर, देन वापस एक्सेल एंड हेड अप, ब्रीदिंग नॉर्मल, देन कम बैक। अब राइट नी को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, राइट हाथ रहेगा शोल्डर लेवल पे एकदम सीधा, हथेली नीचे की तरफ, एंड ट्विस्ट योर बैक कंप्लीटली ट्विस्ट टू लेफ्ट साइड, नजर रहेगी राइट साइड, शोल्डर टच रखो, फील करो, स्ट्रेच करो बैक को, एकदम रिलैक्सेशन हो रहा है, फील करे, स्ट्रेच फील करे, रिलैक्सेशन फील करे, ब्रीदिंग नॉर्मल, 5 4 3 2 एंड 1, कम बैक, पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों पैर नी साथ में और पूरा लॉक लगाइए, स्टमक अंदर, लोअर बैक एकदम जमीन पे टच होनी चाहिए, उठी हुई नहीं होनी चाहिए, इधर थोड़ी देर रोकिए, श्वसन एकदम सामान्य रखो, होल्ड करो इधर थोड़ी देर, फील करो, स्टमक एकदम ढीला छोड़ दो, एकदम अंदर जाने दो स्टमक को, आंखें बंद रखो, ध्यान अपने शरीर के अंदर लगाओ, होल्ड करिए, 5 4 3 2 1, रिलैक्स, पैर को सीधा कर दीजिए। ये बैक पेन का अभ्यास था, बैक पेन कभी ना हो उसके लिए भी अभ्यास है, और बैक पेन जब भी हो तो ये अभ्यास करोगे तो बैक पेन दूर भी होता जाएगा। ये चेयर का अभ्यास भी बहुत अच्छा है, चेयर का अभ्यास भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये रहा बैक पेन। अभी हम जाते हैं नी पेन। जिन लोगों को नी पेन की समस्या है, नी पेन की समस्या आपकी नी पेन की समस्या है जो आपकी डेली लाइफ में आप कैसे उठते हो बैठते हो उसमें भी होता है। कभी कभी योग अभ्यास में गलत जगह पे प्रेशर देने से भी नी समस्या होती है, तो योग अभ्यास भी आपको सही तरीके से करना है। मैंने पहले भी बोला था कि आप कोई भी सूर्य नमस्कार अभ्यास करते हो तो अपने नी को एक जगह पे मेंटेन करके रखो, ये जगह पे ज्यादा नी को ऐसे ज्यादा आगे ले जाना नहीं है, इससे अनावश्यक प्रेशर बनता है इधर, तो ये अभ्यास नहीं करना है। आपको धीरे पीछे ले जाओ पैर को, और नी और एंकल एक सीधी रेखा में रहे, हिप नीचे पुश रहे और ये फ्लैट रहे। अगर आपको नी पेन है तो आप नी के नीचे कोई ऐसी गद्दी हो या ऐसा जड्डा सा कोई टॉवेल हो वो रख सकते हो, फिर भी अभ्यास कर सकते हो। तो ये अभ्यास है, आपको ध्यान से करना है। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो नी पेन में हेल्प नहीं करता, पर आप अगर उसी अभ्यास को ज्यादा देर तक करोगे, कोई गलत अभ्यास है तो आपको नहीं पता है, पर वो अभ्यास से भी नी पेन हो सकता है। तो आप ये अभ्यास सही तरीके से करिएगा। ये ज्यादा आगे नहीं झुकना चाहिए, ज्यादा दबाना नहीं चाहिए नी को। ओके, थोड़ा सा पीछे रखें। तो ये अभ्यास ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है नी। फिर नी पेन के लिए मैंने फर्स्ट बोला आपको नी पेन होता है तो उसके सराउंडिंग जो भी मसल्स है वो मसल्स को सक्रिय बनाना बहुत जरूरी है, मसल्स को एक्टिवेट करना जरूरी है। तो फर्स्ट क्लास के शुरुआत में मैंने बोला था ये अभ्यास करिए। फर्स्ट आपके काफ मसल्स को एक्टिवेट करे, पंजे को एक्टिवेट करे, 10 से 15 बार सुबह उठ के पूरा अभ्यास करना है। और सबसे बेस्ट है आप सनलाइट में अभ्यास करो। सुबह जो 7 से 8 का जो सूर्य आता है, सूर्य की किरण आपके शरीर के ऊपर गिरती है, तो हल्का सा कोई
तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, जो आपको अच्छा लगता है उसको मालिश करिए पहले थोड़ी थोड़ी, तो शरीर में जान आ जाएगी, आपके मसल्स में जान आ जाएगी, नी में जान आ जाएगी, फिर आप अभ्यास करिए। तो वो जो पूरा जो तेल है वो पूरा आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको पूरा पूरा बहुत ही मजबूताई देगा और एकदम अच्छा तरीके से उसको मसल्स को पकड़ के रखेगा जब भी मतलब मसाज करते हो। तो ये अभ्यास करना है। देन सर्कल करना है, सर्कल बहुत ही अच्छा है, ये भी अभ्यास आपको करना है। ये भी 10 से 15 बार पूरा सर्कल लगाना है दोनों तरफ। आपका पूरा शरीर का वजन एंकल के ऊपर आता है, आप पूरा दिन चलते हो दौड़ते हो, पर हम कभी एंकल की एक्सरसाइज करते नहीं, इसलिए किसी का एंकल हिलता ही नहीं, बहुत कम हिलता है, इतना छोटा छोटा हिलता है क्योंकि वो स्टिफ हो गया। तो आपको एंकल को फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी है। और एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो कभी कभी क्या होता है कि हम चलते हैं, कभी खड्डे आ गया तो आपका पैर कभी मुड़ जाता है, तो वो अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। अगर स्टिफ रहेगा तो आपको फिर 2-3 दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी उतनी, अगर कहीं भी इंजरी आ गई तो जल्दी से आप रिकवरी भी पा सकते हो। तो ये अभ्यास करिए। फिर दोनों पैरों में गैप करके अंगूठे को अंदर फिर बाहर करें, पूरा अंदर फिर बाहर करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, अंदर फिर बाहर करें पूरा प्रेशर के साथ। ओके, देन अंदर एंड होल्ड करो, 5 4 3 2 1। देन दोनों पैर साथ में। अब ये सबसे अच्छा अभ्यास है, नी कैप को खींचना है, टाइट करना है, देन रिलीज करना है। नी कैप टाइट करना है, देन रिलीज करना है। ये कैमरा अगर जूम कर सके तो करिए, तो इनको दिखा सकते नी कैप कैसे टाइट करना है। तो आप इधर ये जो नी कैप है उसको, उस मसल्स को आपको एकदम टाइट करना है। ये मसल्स है, मैंने पकड़ा है, देखो उसको टाइट करो फिर रिलीज करो। तो नी को ऊपर की तरफ लाना है, नीचे की तरफ लाना है। तो आप देख सकते हो ये मेरा हाथ का भी मूवमेंट हो रहा है, मैं हाथ का मूवमेंट कर नहीं रहा हूं, मैं नी कैप को खींच रहा हूं। ये नी कैप को टाइट कर रहा हूं, देन रिलीज करना हूं, टाइट कर रहा हूं, देन रिलीज कर रहा हूं, टाइट कर रहा हूं, देन रिलीज कर रहा हूं, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, देन फाइनली टाइट एंड होल्ड। नी कैप को खींचो, थाई मसल्स को खींचो और होल्ड करके रखो, उंगलियों को अपनी तरफ खींचो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। देन अभी नी के नीचे आप कोई भी छोटा सा पिलो रख सकते हो, कोई टॉवेल भी मोड़ के रख सकते हो। तो नीचे ऐसे रख दिया आपने और अपने पैर के पंजे को लिफ्ट करो ऊपर, 10 काउंट होल्ड करे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। देन वापस इनहेलेशन एंड अप। आप नीचे टॉवेल का भी अभ्यास कर सकते हो, जो हाथ नहीं रख सकते वो टॉवेल ले लीजिए, पिलो ले लीजिए, फिंगर उंगलियों को अपनी तरफ खींच के रखो, होल्ड करो। 5 4 3 2 1। अगेन वापस से नी स्ट्रेट एंड लिफ्ट अप, होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड 1। ये अभ्यास आप धूप में करें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मालिश करके लेग मसल्स को, काफ मसल्स को मालिश के साथ अभ्यास करें तो नी पेन में और बहुत हेल्प करता है। तो ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ये टाइट करना है फिर रिलैक्स करना है। ये अभ्यास आप लेट लेट के भी कर सकते हो, नी के नीचे पिलो रख दीजिए, लेट के भी आप नी को टाइट करो देन रिलीज करो, टाइट करो देन रिलीज करो। ओके, तो हम ये अभ्यास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नी पेन, बैक पेन और आपका योग का थोड़ा फ्लो रहा था। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट, शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, स्ट्रेट, आंखें बंद। ओम द्यहुः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करे, जोर से गर्म करे थैली को, आंखों पे रखिए सहजता से।
Then relax. Thank you so much. आपका दिन शुभ रहे. Amazing session, sir. Much needed session. I think many of the comments mentioned that back pain and knee pain is very common nowadays. Yes, yes. तो जिस चेयर की वजह से हमें बैक पेन होता है ना, उसी चेयर की वजह इससे से we आप can remove the remove- back pain. Very सही। interesting चेयर के साथ जो आपने करके दिखाया काफी इंटरेस्टिंग था. तो उस चेयर के साथ हम बैक पेन को रिमूव भी कर सकते Remove भी हैं कर if you सकते हैं। understand. So yes, amazing. I think कोई questions नहीं है. So we are concluding the session. Thank you so much, Okay, sir, sir. for Thank you. doing this wonderful session for us. Thank you. Very good morning to everyone. First of all, thank you so much, Mehul sir, Thank you. for giving your valuable time to us and giving the guidance with regard to the yoga so that we can practice the same in our daily life and can have a better life and a fit life. Thank you so much. Thank you so much, everyone.